Hello guys, welcome to part 3 of national income. So we have done the definition of goods and we have understood the goods in economics in a complete and detailed manner. And today we are on the third chapter and we will learn about factor of production, factor services, transfer payments, all these things in today's class. Okay, so we'll start. But before starting this class today, so if any one of you want a face-to-face class, you can contact us on WhatsApp on this number that I'm writing on the board. So the number is 9953 9953754276. So you can reach us on this number on WhatsApp and we will contact you if the seat is available. Okay. So this is the WhatsApp number. So without any delay, without further ado, we will start our class. Okay. So the first topic of today is factors of production. Factors of production or factor services. Another name for factor of production. Factors of production और factor services. Now what is it? देखिए बेसिकली जब भी हम कुछ प्रोडक्शन करते हैं, जब भी हम कुछ चीज़ें बनाते हैं, तो उस चीज़ को बनाने के लिए या उस सर्विस को देने के लिए हमें चाहिए होते हैं इनपुट्स. हमें चाहिए होते हैं इनपुट्स. अगर मैं इस मार्कर को की बात करूं तो इसमें इंक लगी है, प्लास्टिक लगी है और भी बहुत सारी चीज़ें लगे होंगी जिससे कि ये बना होगा. मशीन लगी होगी इसे बनाने के लिए. ठीक है, तो हमें लगते हैं इनपुट्स, यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए उन्हें कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. वेरी वेरी सिंपल. सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज नथिंग बट द इनपुट. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज नथिंग बट is the input. You can underline this word input. So factor of production is the input used in the production process. Used in the production process. To produce a output. तो जो भी इनपुट you are putting whatever input you are putting to make a product or to produce an output. So this input is known as what? This input is known as what? Factor of production or factor services. वेरी वेरी सिंपल. सो जो भी इनपुट आप लगाते हैं एक आउटपुट को बनाने के लिए उसे कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर सर्विसेज. वेरी वेरी सिंपल. ठीक है, इकोनॉमिक्स में इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, इन फैक्टर सर्विसेज को 4 कैटेगरीज में बांट दिया गया है. सो दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज. ठीक है, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. ठीक है, अब उनके नाम लिख देता हूं मैं और मैं बता भी देता हूं आपको क्या क्या होगा. तो इफ आई टॉक अबाउट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सो दिस इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज. द फर्स्ट कैटेगरी और द फर्स्ट टाइप इज लैंड. The second category is labor. The third category is capital. And the fourth category, the fourth category, which is managing all the three of them, is my entrepreneur. So he's the person who is managing all the three factors of production. ठीक है, तो he is the person who manages
who manages, sorry for the spelling mistake, who manages the other three. Okay, so we will discuss it one by one. We will discuss it one by one. एक एक करके डिस्कस करते हैं क्या होता है. तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट लैंड. व्हाट इज लैंड? सो लैंड, जब हम इसमें बात करते हैं जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, तो आमतौर पे आपके दिमाग में आएगा कि जमीन को लैंड कहते हैं. ऑफ कोर्स जमीन को लैंड कहते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि जमीन को लैंड करते हैं. बट इन इकोनॉमिक्स ऑल द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर which are not made by human efforts, all the free gift of nature which are not made by human efforts will come under land. All the free gift of nature comes under land and economics. ठीक है, लिख देता हूं उसको फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, और आप नोट्स बना लें जिससे. ठीक है, सो ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, all natural resources, or you can say free gift of nature, all natural resources or free gift of nature is known as land in economics. ठीक है, यानी कि मैं बोल सकता हूं not created by human efforts. Can I say this? Not. Of course I can. Not created by human efforts. Now the second factor of production is my labor. So basically जब हम लेबर कहते हैं तो हमारे दिमाग में आता है, physical work. Whatever physical activity is done by some person is known as labor. That comes in my mind when I say, or that in layman terms हम कह सकते हैं कि all the physical activity. लेकिन ऐसा नहीं. जब when I talk about labor in factors of production, both the things, physical activity plus mental exertion also comes under this labor. दिमागी मेहनत को कैसे भूल गए आप लोग? So mental exertion also comes under what? Labor. So the physical activity plus mental exertion, both the things comes under what? Labor. ठीक है, तो अगर मैं दिमागी मेहनत कर रहा हूं, जैसे डॉक्टर्स हैं या फिर ऑल्दो फिजिकल काम भी कर रहे हैं, बट मोस्टली मैं सबसे एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं. एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है बेसिकली जो उसका काम है वो मेंटल एक्सर्शन ही तो एक तरीके से. ऐप डेवलपर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो मैं अगर ये परफेक्ट एग्जांपल है इसका सॉफ्टवेयर डेवलपर्स. सो दे आर डूइंग द मेंटल, देयर वर्क इज बेसिकली मेंटल exertion. Their work basically on a greater scale is of mind and not of physical nature. Okay, so software developers. Okay, fine. Let's move to the third factor of production, and that is what? My capital. समझते हैं इसको भी समझते हैं. तो भाई कैपिटल जब मैं सुनता हूं तो अगर आप अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हैं तो आपको मनी आता होगा कि whatever money I have invested in the business is my capital. करेक्ट बात है, मनी तो है ही है. बट what about tools that you are using for the production is also a capital. What about the machines? What about the equipments? Yeah, sorry, इसमें ना थोड़ा सा there is a problem in this pronunciation. Okay, equipment, factories, all these things comes under
comes under capital, comes under capital. So आप ये नोट बना सकते हैं इसका ऐसे ही करके, बिल्कुल ऐसे ही नोटिंग करेंगे. In an exact manner you should note it down. Note it down in an exact manner. ठीक है, चलिए कैपिटल. Now entrepreneur या entrepreneur, whatever you call it, या entrepreneur क्या है? Who manages all the other factors, all the other three factors. ठीक है, all the other, who manages the other three factors is my entrepreneur. So entrepreneur is managing land, all the natural resources, free gift of nature, all the person, like whatever he's doing, like physical activity or mental exertion. Entrepreneur is managing this labor, and entrepreneur is managing this capital. So he's managing all the three factors. Simple. Or you can also say this, कि entrepreneur is a person who starts a business, and bring the product in the market. Bring the product in the market. So ये भी हमारा entrepreneur या entrepreneur करता है. ठीक है जी. एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर. द सिंपल आंसर इज इनोवेशन. भाई एंटरप्रेन्योर का मेन फंक्शन ही इनोवेशन है. वो इनोवेट करता है, वो ये देखता है कि कैसे इन तीनों रिसोर्सेस का, तीन फैक्टर्स का इस्तेमाल करके वो एक नया बिजनेस स्टार्ट करे और एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लाए, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट in a better manner market में लाए. He wants to bring the new product in the market. He wants to bring he wants to modify the existing product. He wants to make the improvement in the existing product and bring that product in the market. ठीक है, तो ये उसकी क्या है सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन? उसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इनोवेशन. सो यहां पे लिख देता हूं मैं, छोटा सा आंसर लिख देता हूं. क्वेश्चन तो यू गॉट इट ना, कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर. So the most important function of entrepreneur is innovation. ठीक है. ठीक है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर सर्विसेज. यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट इन योर नोटबुक. You can make a note of it in your notebook, and after that we will move to the next topic. We'll move to the next topic. Please make a note of it. So जैसा कि मैंने बताया कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? इनपुट्स होते हैं जो कि हमें प्रोडक्शन में काम आते हैं. Whatever input we are using in the production is known as factors of production. बट एक बात हमेशा याद रखना कि नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड. Everything is a cost, everything is a price, and you have to pay the price to acquire the product. सीधी सी बात है, हर चीज की कीमत होती है, हर चीज की एक लागत होती है. आपको वो लागत दिख रही है तो भी ठीक है, नहीं दिख रही है फिर भी लागत है. whether you can see the cost or you cannot, it doesn't matter, but there is a cost associated with everything. हर चीज के साथ एक कॉस्ट है. तो जब कुछ भी चीज फ्री नहीं है तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी फ्री नहीं होंगे ना, ये इनपुट्स भी तो फ्री नहीं होंगे. इसके बदले हमें कुछ पे करना पड़ेगा, इसके बदले हमें कुछ पे करना पड़ेगा. तो जो चीज हम पे करेंगे, जो चीज हम पे करते हैं इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, उन्हें पता है क्या कह देते हैं? फैक्टर पेमेंट्स. जो भी चीज हम पे करते हैं इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, उसे कहते हैं फैक्टर पेमेंट्स.
यानी कि जो भी इनको अक्वायर करने के लिए कॉस्ट या पेमेंट दी जाती है उसको कहते हैं फैक्टर पेमेंट्स, यानी कि दीज आर द पेमेंट्स मेड बीइंग मेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल। अगर मैं लैंड की बात करूं, ठीक है, तो ऐसी कॉमन सी बात, बड़ा कॉमन सा टर्म दिया गया है इसको कि लैंड को अक्वायर करने के लिए जो भी पेमेंट दी जाती है उसको रेंट बोल दिया जाता है। रेंट, वी कॉल इट रेंट, वी कॉल इट रेंट। लेबर को वट एवर पेमेंट वी आर मेकिंग टू द लेबर इज नोन एज वेजेस। हम वेजेस कहते हैं जो भी पेमेंट, जो भी पैसा हम, जो भी पेमेंट हम लेबर को कर रहे हैं या लेबर के लिए कर रहे हैं उसे क्या कह देते हैं? वेजेस कह देते हैं, वेजेस। वट एवर पेमेंट वी आर मेकिंग फॉर कैपिटल और द मशीनरी और द इक्विपमेंट्स, ठीक है, इसकी जो कॉस्ट है उसको बोल देते हैं इंटरेस्ट। तो यह हमेशा याद रखना कि जब भी कोई कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो उसको क्या चाहिए होता है? इंटरेस्ट चाहिए होता है। सिंपल सी बात है। तो इसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की पेमेंट के लिए उसको कहते हैं इंटरेस्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंटरप्रेन्योर, जो कि इन तीनों फैक्टरों को मैनेज कर रहा है, जो इन तीनों फैक्टरों को मैनेज कर रहा है, ठीक है। ये अपना, मैंने बताया था ये कौन होता है? जो बिजनेस स्टार्ट करता है, ही इज द पर्सन हु स्टार्ट्स द बिजनेस। तो ये जो पेमेंट लेता है, ये जो फैक्टर पेमेंट लेता है, उसको पता है क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रॉफिट। क्योंकि एंटरप्रेन्योर को हमेशा क्या मिलता है? प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर को अपना काम करने के लिए क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो सो द एंटरप्रेन्योर इन रिटर्न इज गेटिंग प्रॉफिट्स। सिंपल। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर पेमेंट। अगर हम देखें तो ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है, ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन, इसको पता है क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बायलैटरल ट्रांजैक्शन। बायलैटरल मींस टू साइडेड। बायलैटरल ट्रांजैक्शन कह देते हैं इसको, बिकॉज इट इज टू साइडेड। भाई एक साइड से दो कुछ तो और दूसरी साइड से कुछ मिलेगा। इस साइड से हम लैंड दे रहे हैं तो उस साइड से रेंट मिल रहा है, इस साइड से लेबर दे रहे हैं तो इस साइड से वेजेस मिल रहे हैं, इस साइड से कैपिटल लगा रहे हैं तो उधर से इंटरेस्ट मिल रहा है, इधर से एंटरप्रेन्योर मैनेज कर रहा है इन तीनों को तो इसीलिए उसको प्रॉफिट मिल रहा है। सिंपल। तो ये बायलैटरल ट्रांजैक्शन है, ये एक बायलैटरल ट्रांजैक्शन है। और जब हम नेशनल इनकम कंप्यूट करते हैं, व्हेनेवर वी आर कंप्यूटिंग नेशनल इनकम, all these incomes are included in that. So we will consider, it is considered while computing national income. अब ये जो दो बातें मैंने आपको बताई हैं, एक तो ये बायलैटरल ट्रांजैक्शन है और ये इट इज कंसिडर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग नेशनल इनकम। एक पर्पस से बताई है मैंने, बताता हूं, अभी बताता हूं पर्पस क्या है उसका। क्योंकि एक मिलता जुलता शब्द, इसको मैं रब कर देता हूं, इसको नोट कर लेना, उसके बाद फिर मैं रब कर देता हूं उसको। तो इसका मिलता जुलता शब्द है ट्रांसफर पेमेंट्स। So don't get confused between these two terms, factor payments and transfer payments. तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, both of them are different. Okay, just a second. हाँ, तो ये दोनों टर्म जो हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है।
क्योंकि these are the payments, these are the payments, these are the payments, these are the payments which is, these are the which are received without rendering any service. हाँ, ये वो पेमेंट्स हैं जो बिना सर्विस के मिलती हैं, बिना सर्विस दिए ये पेमेंट्स मिल जाती हैं, ठीक है। तो जब भी मैं नेशनल इनकम कहता हूं ना, नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम में इनकम आनी चाहिए, और जब बिना सर्विस दिए कोई पेमेंट आपको मिलती है तो उसे इनकम नहीं बोल सकते, कतई नहीं बोलना चाहिए, अपराध है ये। किसी भी इनकम को अगर वो आपको बिना कुछ काम किए, बिना किसी सर्विस दिए मिल रही है तो उसको इनकम मत बोलो। वो इनकम कैसी हुई? वो आपको फ्री में मिल रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली फ्री की इनकम होती है, ये फ्री की पेमेंट जो आपको मिल रही है। सॉरी, इनकम मैंने बोल दिया, सॉरी फॉर दैट, कि इनकम नहीं है ये। सो दीज आर द पेमेंट्स रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विस, दीज आर द पेमेंट्स रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विसेज। तो ठीक है, ऐसा भी होता है कि बिना सर्विस दिए आपको पेमेंट मिल जाएगी, ऑफ कोर्स होता है। चंदा, डोनेशंस, बताओ डोनेशंस के लिए कौन सी सर्विस देनी पड़ती है आपको? नथिंग। You don't have to give a single penny for donation. Sorry, you don't have to do anything for donation. ग्रांट, कभी कभी गवर्नमेंट से आपको ग्रांट मिल जाती है किसी काम करने के लिए, यानी कि कंसेशन है, बेसिकली छूट सी मिल जाती है, ठीक है। गिफ्ट, बताओ गिफ्ट कौन से सर्विस के बाद मिलता है? गिफ्ट भी फ्री है, गिफ्ट इज ऑल्सो फ्री, सो यू डोंट हैव टू वर्क, यू डोंट हैव टू रेंडर एनी सर्विस फॉर दीज काइंड्स ऑफ पेमेंट्स। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि ये ट्रांसफर पेमेंट और फैक्टर पेमेंट, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। फर्क है दोनों में, फर्क है। डोनेशन, ग्रांट, गिफ्ट इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, एंड ऑलवेज रिमेंबर इट इज, आप एक पॉइंट बना के लिखना, मैं तो छोटा सा यहाँ पे एक एरो बना के लिख दे रहा हूँ, बट यू राइट इट इन अ पॉइंट, मेक अ पॉइंट एंड आफ्टर दैट यू कैन राइट इट, ठीक है। एक पॉइंट लगा लेना एरो करके, उसके बाद लिखना, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, इट इज नॉट कंसिडर्ड, एक अलग पॉइंट लिखना है इसके लिए पक्का। इट इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग ये कभी भी इनकम, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम, नेशनल इनकम एस्टिमेट करते टाइम, वी नेवर टेक दिस ट्रांसफर पेमेंट बिकॉज इट इज नॉट अ इनकम, इट इज नॉट अ इनकम, ओके ना। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एंड स्टिल यू आर रिसीविंग द पेमेंट, सो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इनकम। और गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, ये कोई चैरिटी और चैरिटी कोई कर रहा है तो ये सब कोई इनकम थोड़ी है, इट्स नॉट इनकम, सो वी विल नॉट कंसिडर this as income. And these are what, these were bilateral transactions, these are bilateral transactions, okay, but this is unilateral, one sided, unilateral transactions, ये unilateral transactions हैं, ठीक है, ये unilateral transactions हैं, इसके लिए हम कोई भी सर्विस नहीं दे रहे, ठीक है। दैट्स इट, वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी अदर मिनट और एनी फर्दर मिनट ऑन दिस टॉपिक, वी आर डन विद दीज टॉपिक्स। सॉरी, अब आप नोट कर सकते हैं इफ यू वांट टू नोट इट, और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ओके, एंड मेक अ प्रॉपर, you can make proper notes in your notebook, ठीक है। You can take a screenshot of it.
You can take a screenshot of it. So if you really liked the video, share the video with your friends. Okay, so आज हम इतना ही करेंगे और अगली क्लास में, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू अदर टॉपिक्स। और मैं ट्राई करूँगा कि मैं कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊँ क्लास में, क्लास में, ठीक है। बिकॉज विदाउट क्वेश्चंस मुझे लगता है कि बस पढ़ते जाना और कुछ क्वेश्चंस ना करना, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो yes, we will do some questions. Or if you want a face-to-face class, I have already mentioned my contact number in the inception of the video. So वहाँ से आप देख सकते हैं, शुरुआत में मैंने लिख दिया था, तो वहाँ से आप हमें मैसेज कर सकते हैं और we will let you know कि आप सीट अवेलेबल है या नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और चलिए खत्म करते हैं क्लास को। ओके।